Hello student, Hemant sir is here. So today we are going to understand the new topic of our chapter called heat. So today we will understand the specific heat capacity of any substance. Okay. So what is specific heat basically, that we have to understand first. Okay. So it is the capacity of the matter to absorb heat to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius. This required heat is called as specific heat capacity. To understand the specific heat capacity, we have to go through this activity. So in activity, you can see the diagram where there are three balls are there. One is iron ball, another is copper ball and lead ball. These all three different balls have the same mass but by formed by the different metal. One is of iron, another one is of copper and next one is of lead. So we have to check whether these three different balls of same mass have heat capacity same or different. Okay, so तीनों बॉल को हमने क्या किया, सेम टेम्परेचर पर हमने हीट किया. सपोज हमने तीनों बॉल को 100 डिग्री सेल्सियस तक के हमने क्या किया, हीट किया. इतना हीट किया कि इनका टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस. आफ्टर दैट हमने इनको एक जो वैक्स का क्यूब है, हमने वैक्स के क्यूब के ऊपर तीनों बॉल को साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हमने प्लेस किया. सो हम देख रहे हैं कि आयरन जो बॉल है वो वैक्स में बहुत ज्यादा डीप तक गया है एज कंपेयर टू द कॉपर बॉल, एंड जो कॉपर बॉल है वो लेड के कंपेयर में डीपर है बट आयरन के कंपेयर में थोड़ा अपर साइड में. ओके, सो हम चेक कर सकते हैं. देखो तीनों का जो मास है वो सेम है. दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑल थ्री डिफरेंट बॉल इज सेम एंड देयर टेम्परेचर, और हमने तीनों को सेम टेम्परेचर तक हीट किया था और हमने क्या किया है, इनको वैक्स के एक स्लाइस के ऊपर हमने प्लेस किया. सो आयरन बॉल ज्यादा जा रहा है डीप में एज कंपेयर टू द कॉपर, एंड कॉपर थोड़ा डीप जा रहा है एज कंपेयर टू द लेड बट नॉट डीपर एज कंपेयर टू द आयरन बॉल. अब ऐसा एक्चुअल में क्यों हुआ? सो हम ये कह सकते हैं कि आयरन बॉल की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. Heat holding capacity of iron ball is greater than other two balls. इसीलिए हम कह सकते हैं कि आयरन बॉल की जो हीट कैपेसिटी है वो कॉपर और लेड दोनों बॉल से क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर है. अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर बॉल का मास लेड के और आयरन के बराबर ही है बट उसमें हीट होल्डिंग कैपेसिटी लेड से ज्यादा है बट आयरन से कम है. अगर हम बात करें लेड की, तो लेड की हीट होल्डिंग कैपेसिटी आयरन और कॉपर से कम है. दैट मीन्स ऑल द थ्री बॉल्स हैव डिफरेंट हीट कैपेसिटी. ओके, सो इससे प्रूफ कंक्लूड ये हो रहा है कि डिफरेंट मैटर हैव डिफरेंट हीट होल्डिंग कैपेसिटी. ओके, सो this is nothing but the specific heat capacity of an object. Okay, so we have to write the definition of specific heat capacity. Okay, so what is specific heat capacity? The required heat to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius is called as specific heat capacity, and it is denoted by small c, and it is denoted by small c. Okay, so write down this
definition first and once go through this activity also. Okay, so write down the definition first, then we will move further. So write down now. So now we will understand the unit of specific heat capacity. Okay, so the unit of specific heat capacity is in SI system. SI system, यहाँ पर जो SI है, SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल. ओके, सो इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस. ओके, this is the unit of heat capacity in SI system. And in CGS system, what is CGS system? It is centimeter gram per second. So centimeter per gram per second में heat capacity की unit है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. Okay, so this is the unit of specific heat capacity. Okay, so write down, because when we will solve the numericals, then we will use the unit also. Okay, so write down these two unit of specific heat capacity. And the specific heat capacity of the different matter is different, that we have already understood in our activity. Okay, so write down the unit of specific heat capacity. Now we will understand the formula for the specific heat capacity. If we want to calculate the specific heat capacity of any substance, we will use the formula. Okay, so the formula will be, suppose if m, small m, is the mass of substance and C is specific heat capacity, and del T is change in temperature, change in temperature in degree Celsius, then the heat exchange, whether it is absorbed or released, which depends on the temperature, that is change in temperature, called delta T. Delta T is change in temperature. Okay, and we know del T equals to होता है T2 minus T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. ओके, सो एक्चुअल में ये चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए यूज होता है, दैट इज डेल टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. ओके, सो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, दैट इज हीट एक्सचेंज, इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, m मास of substance into specific heat capacity of substance into change in temperature, that is m into C into del T. Okay, so this is the formula for calculating the specific heat capacity of the substance. Okay, so write down this formula also, because on this formula we have some numericals that we have to solve. Okay, so write down this formula, unit, and this del T formula also. What is del T? It is change in temperature. It is the difference of final temperature to the initial temperature. Okay, so write down now. One more thing we have to understand for change in temperature. We have change in temperature, that is del T equals to T2 minus T1. Suppose अगर del T की वैल्यू निगेटिव आती है, del T की वैल्यू निगेटिव आ रही है, दैट मीन्स टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स सब्सटेंस में से हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. ओके, सो हियर वी हैव टू राइट, इफ del T is negative,
then substance or matter will release heat energy. Okay, if del T is positive, then matter or substance will absorb heat. ओके, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ये किस बेस के ऊपर डिपेंड होगा कि वेदर जो सब्सटेंस है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है। अगर सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स सब्सटेंस क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर टेम्परेचर जो चेंज इन टेम्परेचर अगर वो निगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स सब्सटेंस क्या करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा, यानी लॉस ऑफ हीट। ओके, सो राइट डाउन दिस specific part because it is also important for solving the numericals. Okay, so write down now. Now we will understand the concept of heat exchange. Okay, so as we know, heat energy always flows from hotter matter to colder one, or we can say heat energy always flows from the hotter region to colder region, or hotter substance to colder substance. Okay, सो हीट एनर्जी का फ्लो हमेशा किधर से होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के साइड में। ओके, सो वी कैन कंक्लूड दैट हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। ओके, फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन एग्जांपल। सपोज वी हैव वन हीट आइसोलेटेड बॉक्स. It is the heat isolated box, or we can say it is the isolated system. ऐसा सिस्टम जहां से मेटर एज वेल एज हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, सो इनसाइड द आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हम बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की, सो हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं थर्मस फ्लास्क। सो थर्मस फ्लास्क में अगर हम कोई हॉट मेटर को प्लेस करते हैं, सो फॉर अ लॉन्ग टाइम वो हॉट का हॉट ही रहता है, बिकॉज इट इज द थर्मल फ्लास्क इज द आइसोलेटेड सिस्टम, जहां पर मेटर एज वेल एज हीट का एक्सचेंज नहीं होता। ओके, सपोज दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम एंड हियर देर आर टू ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड, वन इज ए एंड अनदर इज बी. देर आर द टू ऑब्जेक्ट, दे आर प्लेस्ड टुगेदर. ओके, सपोज टेम्परेचर जो B का है, टेम्परेचर ऑफ B इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ A. मीन्स ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, हॉट है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट कैसा है, कोल्ड है. कोल्ड यानी ठंडा है, जिसका टेम्परेचर डाउन होगा. अब हमने दोनों को एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया. सो क्या होगा यहाँ पर, सो यहाँ पर हीट का एक्सचेंज होगा. सो हीट विल फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर टिल, कब तक फ्लो होगा, टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल. तो हीट का फ्लो कब तक होगा, जब तक टेम्परेचर ऑफ बी बिकम्स इक्वल्स टू द टेम्परेचर ऑफ ए. ओके, तब तक हीट क्या होगी, एक्सचेंज होगी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, और from the hotter object to colder object. Okay, so the principle of heat exchange says the heat always flows from the region of higher temperature to the region of lower temperature till the temperature of both object becomes equal. ये कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता तब तक. This is nothing but the principle of heat exchange. Okay, so now we will understand the next concept about how to calculate the specific heat capacity by mixing method. Okay, so what is mixing method? So mixing method में हम यूज करेंगे कैलोरीमीटर का. So कैलोरीमीटर में एक्चुअल में वाटर भरा हुआ होता है. सपोज दिस इज आवर कैलोरीमीटर. ओके, ये कैसा है, कैलोरीमीटर है. कैलोरीमीटर में यहाँ पर कैलोरीमीटर में जनरली हम यूज करते हैं मरकरी. जनरली हम यूज करते हैं मरकरी का.
ओके, सो मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जैसे ही मरकरी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपर साइड में मूव होना स्टार्ट हो जाता है और वो हमको टेम्परेचर का मेजरमेंट को शो करता है एज लाइक इन थर्मोमीटर ऑल्सो। जो बेसिक थर्मोमीटर होता है, जैसे हमने हीट किया तो उसका जो लेवल है वो अपर साइड में मूव होने लगता है एंड इट शोज द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द यूज ऑफ कैलोरीमीटर। इट इज CA कैलोरीमीटर, MTR। ओके, इट इज मीटर, कैलोरीमीटर। देन हियर इन वाटर कैलोरीमीटर में हम यहाँ पर पूरा का पूरा वाटर यूज करेंगे। इट इज फिल्ड विथ वाटर। ओके, एंड देर आर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड। ओके, सो यहाँ पर अगेन हमने जो B ऑब्जेक्ट है वो हॉट है एंड A जो ऑब्जेक्ट है कोल्ड हमने कंसिडर किया है। ओके, अब हीट एक्सचेंज को हम यहाँ से क्या करेंगे, मेजर करेंगे। सो B क्या करेगा, अब B का टेम्परेचर है ज्यादा, सो हम लिखेंगे यहाँ पर B will lose energy, lose heat। ओके, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट A है जो कि कोल्ड है, तो कोल्ड है इसका मतलब वो क्या करेगा, हीट को अब्सॉर्ब करेगा। देन ऑब्जेक्ट A will gain heat। सो क्या यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट A है, A ही है जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा? नो, इसके सराउंडिंग में यहाँ पर हमने वाटर फिल किया है, सो वाटर विल आल्सो एब्जॉर्ब हीट, देन कैलोरीमीटर विल आल्सो एब्जॉर्ब हीट। देयरफॉर टोटल हीट लॉस बाय ऑब्जेक्ट B is always equals to the heat absorbed by the object A plus heat absorbed of water plus heat absorbed by calorimeter. Okay, let heat absorbed by calorimeter is Q3, heat absorbed by water is Q2 and heat absorbed by object A is Q1 and heat lost by object B is Q. Then we can write that Q, that is heat lost by object B. Heat lost of object B equals to heat absorbed by object A, that is Q1 plus heat absorbed by water is Q2 and heat absorbed by calorimeter is Q3. Okay, so इन तीनों का सम अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू द हीट लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट बी। क्योंकि हम ये जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, अपने आइसोलेटेड सिस्टम में। दैट मीन्स यहाँ से हीट एनर्जी बाहर तो एक्सचेंज नहीं होगी सराउंडिंग में, बट हीट एक्सचेंज होगा कहाँ, हमारे आइसोलेटेड सिस्टम के इनसाइड में, बिटवीन वाटर, cold object and calorimeter. Okay, so we can say the total heat lost by the hot object is always equals to the total heat absorbed by cold object plus water and calorimeter. Okay, so this is the principle of heat exchange. और ये कब तक होगा, ये तब तक होगा जब तक तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक। ओके, सो स्टूडेंट्स हीट एक्सचेंज और हीट कैपेसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड इन आवर प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।